going to start problem set 3. I hope you understand the previous 5 questions. We'll start from the 6th question. Okay. The steps, maybe you will get some new questions today, and you have to pay attention, because if you have not if you have not joined the last lectures, last 2 to 3 lectures, then it will be difficult for you to understand. So pay your attention over here. May the repeated things you will see. If the sum of the third and the eighth term of an AP is 7. Now this is the first sentence. If the sum is addition of the third and eighth term. Third term is T3 and eighth term of an AP is 7. Means if you will add the T3 and T8, you will get 7. So this is the first condition. Okay. The sum of the third and eighth term. And sum of 7 and 14 term. Sum of T7 and T14 is -3. Then find the 10th term. And what you have to find? T10. Here we don't know A. The first term we don't know. We don't know common difference. So first we'll suppose. Okay. So suppose first term is A and common difference is D. Okay. After that, we will take condition 1. Condition 1. What is the condition 1? The sum of the third and eighth term. Third and eighth term is T3. Okay. Plus T8 is 7. This is the first condition. The sum of the third and eighth term of an AP is 7. So this is the first condition. According to the first condition, we have written. Okay. Now I told you directly after that you have to put up the value. T3 means what? As per your formula, Tn is equal to A plus N minus 1D. N minus 1. N, what is N over here? 3. 3 minus 1, that is 2. Okay. 8. 8 minus 1, that is 7. So as per your formula, you can write down the value. T3. Directly put up here A plus 2D. In place of T3, you can directly put the value A plus 2D. Now those who are new, they will not understand. So now see here, T3 is equal to A plus N minus 1D. This is the formula of Tn. Now A plus N is 3. 3 minus 1 D. A plus 2D. Okay. तो आपको क्या करना है, जस्ट जो भी आपकी टर्म है उसमें से आपको -1 कर देना है और उसको डी के साथ लिख देना है. ओके. सो A plus 2D. Now T8. What you will write over here? A plus 7D is equal to 7. Okay. Now we will add A plus A, 2A plus 2D plus 7D, 9D is equal to 7. Now we cannot simplify this equation. क्योंकि अगर आप 2 से करोगे तो 9 भी नहीं होता है, divisible 7 भी नहीं होता है. So it means that it will be as it is. So this is equation number 1. Okay. This is equation number 1. Now as per the condition 2. अब देखो condition 1 से हमने equation 1 निकाल ली है. Now see from condition 2. What is the condition 2? Add sum of 7th and 14th term. Sum of 7, T7 and 14th term, T14 is equal to -3. Okay. -3 है, ध्यान रखना है. 7 and 14 term -3. Again we will do the same thing. T7 है तो हम क्या लिखेंगे? A plus 60 प्लस T14 है, हम क्या लिखेंगे? A plus 13D is equal to -3. Again add A plus A, 2A plus 6D plus 13D, 19D
is equal to -3. Now we got two equations. This equation also we cannot simplify, as 19 and -3, they are not divisible by 2. Okay, now we'll solve both the equations. Take equation 1 and 2. Okay, 2a plus 9d is equal to 7. 2a plus 19d is equal to -3. Do the subtraction. Subtraction करते हैं हम. Minus. This minus will change into plus. 2a cancel. Minus 19d plus 9d. You will get minus 10d is equal to. Now this -3. अब ये क्या हो गया? +3. So 7 plus 3, 10. So d is equal to 10 upon -10. You will get d is equal to -1. ओके, हमको यहाँ पर d की वैल्यू मिल गई है. नाउ यू ऑल नो दैट. नाउ विल पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1 as it is easy. So put d is equal to -1 in equation 1. Okay, first write down the equation always. 2a plus 9d is equal to 7. 2a plus 9 into -1 is equal to 7. 2a plus minus -9. 2a is equal to 7 plus 9. You will get 16. Okay, so I'm just going to wipe here. Okay, the question is with you, so it will be easy for you. Okay, so we will get 2a plus 2 is equal to, अभी क्या हो रहा है? ये -9, ये जाकर प्लस हो जाएगा. 7 plus 9, so 2a is equal to 16. a is equal to 16 upon 2. You will get 2 8s are 16. a is equal to 8. Now you have the value of d and you have the value of a. Now what was the question? Find out the value of T10. आपको T10 find out करना था. Very easy. Even without any formula you can write. अभी T10 का मतलब क्या होता है? T10 का मतलब होता है a plus 9d, है ना? T10 means a plus 9d. As you all know that T3 मतलब a plus 2d, T8 मतलब a plus 7d, T7 means a plus 6d, T14 मतलब a plus 13d. So T10 मतलब a plus 9d. So what is a? 8 plus d minus 1. 8 plus minus 9 ones are 9. So you will get -1. So your 10 term is -1. Okay. You can take the screenshot. It was very easy question. We have done such type of question in previous practice set, in the previous question. Okay. So just take out the screenshot. बहुत simple question है. आप लोगों को अभी इस पर कमांड आ जाना चाहिए कि जब भी आपको कोई टर्म दिया हुआ रहता है, तो विदाउट यूजिंग द फॉर्मूला, without expanding your steps, how you can calculate in a very easy way. Okay, T3 जैसे मैंने आपको बताया कि सम आपको दिया हुआ था कि थर्ड टर्म और एट्थ टर्म का जो सम है वो 7 है. Okay, so you have written in the formula, you have written in the algebraic expression that T3 plus T8 is equal to 7. Okay, आपको सिंपल ये आना चाहिए कि T3 means what? T3 का मतलब क्या होता है? तो T3 का मतलब होता है a plus 2d. Just do -1. ओके. T8 का मतलब क्या होता है? a plus 7d. ये आपको आना चाहिए. अगर आपको ये आता है then it is very easy for you to calculate. Okay. Okay, take the screenshot. Then we will do the next question. Okay, so now see the next question. In an AP,
The first term is -5. In an AP, the first term is -5. आपको फर्स्ट टर्म दिया हुआ है, ओके, एंड द लास्ट टर्म इज 45. And the last term is 45. First term means A, last term means TN, okay, and the last term is 45. If the sum of all numbers means SN, okay, if the sum of all number is in AP is 120, ये जितने भी नंबर्स हैं सब AP में और उन सब का सम 120 है, ओके, सबका सम 120 है, देन हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, तो कितने टर्म्स हैं, देन हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, मतलब आपको यहाँ पर n फाइंड आउट करना है, ओके, व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस, फिर उसके बाद आपको फाइंड आउट करना है कॉमन डिफरेंस. सीम्स टू बी डिफिकल्ट बट इजी टू सॉल्व. ओके, नाउ सी द क्वेश्चन अगेन. इन एन एपी द फर्स्ट टर्म इज -5, आपको ए दिया हुआ है, एंड द लास्ट टर्म इज 45. आपको TN दिया हुआ है. इफ द सम ऑफ द ऑल नंबर इन एपी इज 120, अगर सबका सम 120 है, मतलब SN दिया हुआ है आपको, देन हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, तो आपको N फाइंड आउट करना है, एंड व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस. ओके, तो यहाँ पर देखेंगे हम, सबसे पहले हमें क्या क्या दिया हुआ है, ओके, हमको यहाँ पर दिया हुआ है वैल्यू ऑफ A, और वी कैन से दैट T1 फर्स्ट टर्म या A दिया हुआ है आपको -5, आपको TN दिया हुआ है 45, आपको SN दिया हुआ है 120, आपको फाइंड आउट करना है N और आपको फाइंड आउट करना है D, ओके, ठीक है. अभी SN दिया हुआ, इट मींस दैट वी विल यूज द फॉर्मूला ऑफ SN, ओके. अभी हमारे पास SN के दो फॉर्मूले हैं, SN का दो फॉर्मूला कौन कौन सा है, फर्स्ट जो हम कॉमनली यूज करते हैं 2A प्लस N-1D, ठीक है. अभी हमको N भी फाइंड आउट करना है, D भी फाइंड आउट करना है, बट दिस इज द रूल, एट अ वन टाइम यू कैन फाइंड आउट जस्ट द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल, ओके. आप सिर्फ एक ही वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं. अभी आपको D भी नहीं पता है, आपको N भी नहीं पता, इट मीन्स दैट वी कैन नॉट यूज दिस फॉर्मूला. वी हैव वन मोर फॉर्मूला, SN इज इक्वल टू N/2 अंडर ब्रैकेट T1 प्लस TN, फर्स्ट टर्म प्लस last term. Here we have to we know T1, we know TN, we know SN, we have to just find out N, okay. So we will use this formula, okay. तो हम ये second formula use करेंगे, okay. So now let's proceed. So SN is equal to N/2 under bracket T1 plus TN. SN is 120, N we don't know, T1 is -5, TN is 45, ओके, ठीक है. अभी हम क्या करेंगे, 2 जो है वो मल्टीप्लीकेशन में है, सॉरी डिवीजन में, उधर जाकर मल्टीप्लाई कर लेगा. 120 into 2 is equal to N अंडर ब्रैकेट माइनस प्लस माइनस 45 minus 5 40, ओके. अभी ये 40 भी हम क्या करेंगे, इट इज इन द मल्टीप्लीकेशन फॉर्म, इसको ले जाकर डिवाइड कर देंगे. ठीक है. सो 0 0 कैंसल, 4 1s are 4, 4 3s are 12, 3 into 2 is equal to N, 3 2s are 6. So the value of N is 6. ठीक है, हमारी N की वैल्यू आ चुकी है. अभी हमें क्या पता करना है,
Now we have to find out the common difference. ठीक है, so now we'll use the formula of Tn. हम Tn का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, हम यूज कर सकते हैं Sn का फॉर्मूला भी, हम जो फर्स्ट फॉर्मूला है Sn का हम वो यूज कर सकते हैं, बट दैट विल बी लेंदी. हमें Tn पता है ना, Tn is equal to 45, so we can use the formula of Tn, a plus n minus 1d, है ना. Now we can use the formula of Tn is equal to a plus n minus 1d. ये डायरेक्टली आपको तो आ जाना चाहिए. T45 का मतलब क्या होता है, a plus 44d, है ना. आपको तो डायरेक्टली आ जाना चाहिए. We can directly put up the values. Sorry, हमारे पास जो है, मैं फॉर्मूला से ही जाती हूँ. Tn is equal to a plus n minus 1d. Tn का वैल्यू कितना है, 45. a का वैल्यू कितना है, -5. n का वैल्यू कितना हमने फाइंड आउट किया, 1. 6 minus 1. d का वैल्यू हमको पता नहीं है. सो 45 इज इक्वल टू, ये -5 यहाँ पर आकर प्लस हो जाएगा. व्हाट विल रिमेन हियर, 6 minus 1 5, 5d. 45 plus 5 50. So 50 upon 5 is equal to d. So 5 tens are 50. So d is equal to 10. आप कर लो, फिर मैं थोड़ा सा शॉर्ट में और बता देती हूँ उसको. टेक द स्क्रीनशॉट. बहुत इजी था, बहुत सिंपल था. आपको जस्ट ये रिमेम्बर रहना हो चाहिए कि आपके पास Sn के दो फॉर्मूले हैं. So we have to use the second formula. If you will not understand the second formula, then it will be difficult for you to solve this easy question. Okay? तो आपको याद रहना चाहिए कि हमारे पास Sn के दो फॉर्मूले हैं. Whenever you come across such type of condition, so just take both the formula and then just see that which is suitable for the question. Okay? आपको ये याद रखना है कि भाई कौन सा मेरे लिए बहुत सुटेबल रहेगा, मैं कर सकता हूँ, इससे कर सकता हूँ. ठीक है, अभी यहाँ पर देखो, मैंने जैसे आपको बताया कि मैं थोड़ा शॉर्ट करके बता सकती हूँ आपको. जैसे हमारे पास n की वैल्यू कितनी आ गई थी. इफ यू हैव टेकन द स्क्रीनशॉट, इफ यू हैव नॉट टेकन द स्क्रीनशॉट, टेक द स्क्रीनशॉट, देन आई विल सिंपलीफाई दिस. ओके, आई होप यू हैव टेकन. देखो यहाँ पर अभी मैं इसको इतनी सारी स्टेप आई है ना, ये फर्स्ट फॉर राइटिंग फॉर्मूला, सेकेंड फॉर पुटिंग द वैल्यूज एंड ऑल. अभी देखो, अभी हमारी n की वैल्यू कितनी आई थी, 6. मीन्स Tn is equal to 45, मतलब T6 is equal to 45. बट हमारा T6 क्या हो जाता है, T6 is equal to a plus 5d. ठीक है, T6 कितना है, 45 is equal to a की वैल्यू कितनी आ जाती है हमारी, -5 plus 5. माइनस आके प्लस हो जाएगा, ये आकर डिवाइड हो जाएगा. 45 plus 5 is equal to 5d. 50 upon 5 is equal to d. d is equal to 10. मतलब T6 था हमारा वो, तो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं. T6 is equal to a plus 5d. बस मुझे ये बताना था आपको कि हम कैसे यहाँ पर डायरेक्टली लिखते हैं. T6 means a plus 5d. ओके, ओके. इफ यू हैव एनी, यहाँ पर आपको सिर्फ ये वाला जो फॉर्मूला है ये ध्यान रखना पड़ेगा. अदर रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर वेरी इजी. ओके, ओके. नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. Okay, so the next question is, the sum of 1 to n natural number is 36. The sum of 1 to n natural number is 36. Then find the value of n. Very easy. Find the value of n. Okay. The sum of 1 to n natural number. 1 to n natural number means
AP starts from 1, 1, 2, 3, 4, 5. ओके, तो उसका जो सम है that is 36 है. And what you have to find out? You have to find out the value of n. Okay, अब यहाँ पर थोड़ा सा हमको मिलेगा कॉम्प्लिकेशन. ओके, फर्स्ट विल राइट डाउन द AP. AP is 1, 2, 3, 4 till n. Okay, now what will be A? A is 1. B is T2 minus T1. Always go through T2 minus T1. Don't write directly. 2 minus 1, that is 1. Okay. Now Sn is 36. What is the value of n? हमको n की वैल्यू फाइंड आउट करना है. We have A, we have D. Okay. So now we will write down the formula of Sn. Is equal to, now here again we will use the first formula. अभी हम यहाँ पर सॉरी फर्स्ट फॉर्मूला यूज करेंगे क्योंकि हमको लास्ट सम पता नहीं है. n/2. और जब भी हमें a और d पता होता है ना, इट इज कन्वीनियंट टू यूज द फर्स्ट फॉर्मूला 2a plus n-1b. Okay, this is the formula. The value of Sn is 36. n की वैल्यू हमको पता नहीं है. 2 into 1 plus n-1, value of d is 1. Okay, so ये जो 2 है उधर जाकर क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा. 36 into 2 is equal to n remain over here. 2 ones are 2 plus n-1. Now here 1 1 से इसको मैं क्या करती हूँ, पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करती हूँ. 1n minus 1 ones are 1. देखो यहाँ पर ये मैंने n-1 ब्रैकेट को पूरे 1 से मल्टीप्लाई किया, सो विल गेट द सेम थिंग. ओके, 36 2 सा 72 होता है, इज इक्वल टू n अंडर ब्रैकेट 2 minus 1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा. सो n plus 1. ठीक है, आ रहा है समझ में. अभी हम क्या करेंगे, n को पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे. सो वी विल गेट 72 इज इक्वल टू, ये n को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे. n स्क्वायर. ओके, n वन सा n. ठीक है. नाउ दिस प्लस 72 इट विल शिफ्ट फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड. तो क्या हो जाएगा, n स्क्वायर प्लस n माइनस 72 इज इक्वल टू 0. अभी हमारे पास आ गई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ओके, हमारे पास आ गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन. नाउ वी हैव टू सिंप्लीफाई दिस. नाउ बाइफरकेट 72 इन सच अ वे दैट द सब्ट्रैक्शन ऑफ द फैक्टर्स मस्ट बी 1. ओके, आपको 72 को ऐसे बाइफरकेट करना है कि उसको माइनस अगर करेंगे तो हमारे पास प्लस 1 आना चाहिए. तो 72 है, सो 9 is 72. ओके, 9 is 72. So minus plus 9 minus 8 plus minus minus you will get plus 1 over here. So you will write down in place of n. What you will write down? n square plus 9n minus 8n minus 72 is equal to 0. Now make a pair. इसीलिए बोलते हैं ना, प्रीवियस नॉलेज जो होती है, जो भी हमारे जो चैप्टर्स होते हैं ना, दे आर इन अ वेरी सिस्टमैटिक वे. ठीक है, अभी हम लोगों ने कितनी बार यूज किया लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, विच वाज आवर फर्स्ट क्वेश्चन. अभी हमने उससे बहुत सारे इक्वेशंस बनाए, ए और डी की वैल्यू हमने फाइंड आउट की. ठीक है, उसके बाद हमारा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन. अभी हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गए. ठीक है, मतलब इफ वी हैव द प्रीवियस नॉलेज, ओके, देन इट इज इजी टू प्रोसीड फर्दर. ओके, तो आपको किसी को भी नेग्लेक्ट नहीं करना. So we will take out the common over here. So you will get n plus 9. Here you will get minus 8. N plus 9 is equal to 0. So n plus 9 and n minus 8 is equal to 0. Therefore, what will you get? N plus 9 is equal to 0 or n minus 8 is equal to 0. Therefore, n is equal to minus 9 or n is equal to 8. So, negative term is unacceptable. So, minus 9, it is unacceptable. So, you can write down negative term is unacceptable.
कभी निगेटिव में नहीं हो सकता ना नंबर। जैसे अगर मैं आपको बोलूंगी कि क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं, तो यू विल से कोई नहीं है, आप जीरो बोलोगे, नो स्टूडेंट्स इज देयर। Otherwise, you will say one student is there, two student is there. You will never say -1 student is there, -2 student is there. Okay. So terms भी या तो जीरो हो सकती है, या तो 1, या तो 2, या तो 3, या तो 4। कभी माइनस में टर्म नहीं जा सकती, यानी नंबर ऑफ टर्म्स कभी माइनस में नहीं जा सकती। ओके, सो हियर नेगेटिव टर्म इज अनएक्सेप्टेबल, therefore n is equal to 8. Okay. So basically it was based on your checking that how you can do quadratic equation very well. So now see the sum of 1 to n natural number is 36. आपको बोल रहा है कि जो आपका 1 से लेके नेचुरल नंबर है, जो आपका एपी स्टार्ट होता है, स्टार्ट फ्रॉम 1 2 3 4 टिल n, देयर सम इज 36। तो उसका सम जो है वो 36 है। तो आपको ये फाइंड आउट करना था कि हाउ मेनी टोटल नंबर्स आ गए। ओके, कि टोटल नंबर्स कितने हैं, तो वहां पर 8 टोटल नंबर्स है। देखो, इफ यू विल डू इट मैनुअली, 1 + 2 3 होता है, 3 + 3 4 होता है, 4 + 4 8 होता है, 8 + 5 13 होता है। तो अगर आप ऐसे सॉल्व करोगे, जैसे अगर 8 नंबर तक जाएंगे आप, तो आपको मिलेगा 36। ओके, तो यहाँ पर 1 से लेके था, हमको लास्ट नंबर नहीं पता था, दैट वाज इन, वी हैव कंसीडर्ड। फिर उसके बाद हमने क्या लिया, a की वैल्यू निकाली, d की वैल्यू निकाली, देन वी यूज द फॉर्मूला Sn इज इक्वल टू n/2 अंडर ब्रैकेट 2a + n - 1। फिर हमने वैल्यूज को रखा है, Sn की वैल्यू 36, बहुत ध्यान से रखना वैल्यू, हमको n की वैल्यू पता नहीं है, n/2 अंडर ब्रैकेट 2 × 1 plus n - 1, the value of d is again 1. Then we have taken this 2 from division to multiplication, 36 × 2, you will get 72. Now we will solve the bracket over here. थोड़ा सा यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, 2 1s are 2, n - 1 को हमने होल ब्रैकेट को पूरा 1 से मल्टीप्लाई किया, so we got the whole bracket as it is, n - 1. हमने सिंप्लीफाई किया, 2 - 1, 2 में से 1 जाएगा तो +1 बचेगा, so n + 1। ठीक है, फिर हमने क्या किया, इस n को पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई किया, देन वी गॉट n² + n। फिर हमने 72 को लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड पे लेकर आए हैं, इट बिकम नेगेटिव, इट बिकम द इक्वेशन n² + n - 72. Then we solve the equation and we got the answer. If you have any doubts, so just keep it in your mind, then we will see in the last 5 to 10 minutes. Okay, take the screenshot, then we will see the next question. Okay. So the next question is challenging question. Divide 207 in 3 parts. 207 को 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है, such that all parts are in AP. ऐसे करना है, सब AP में रहना चाहिए, and product of the 2 smaller parts will be, and product of 2 smaller part is 4623. क्वेश्चन को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपको यहाँ पर समझ में आना चाहिए कि आपको सपोज क्या करना है पहले। तो यहाँ पर 3 पार्ट्स बोल रहा है, डिवाइड 207 इन 3 पार्ट्स। आपको डिवाइड करना है 207 पार्ट्स को 3 पार्ट्स में, सच दैट ऑल पार्ट्स इन एपी। तो ये फर्स्ट कंडीशन है। अब बताऊं आपको कैसे, पहले तो हम सपोज करते हैं
3 पार्ट्स के बारे में बात हो रही है। हमने देखा है हाउ टू सपोज द 3 टर्म्स, हाउ टू सपोज द 4 टर्म, हाउ टू सपोज द 5 टर्म। ओके, तो यहाँ पर हम 3 टर्म्स को सपोज करते हैं। ओके, क्योंकि 3 पार्ट्स में डिवीजन हो रहा है, तो पहले हम 3 पार्ट्स को हम सपोज करते हैं, विच आर इन एपी। अगर एपी में है तो हमको पता है, तो सपोज 3 पार्ट्स आर, 3 पार्ट्स है, सो a माइनस डी, a प्लस डी, क्योंकि एपी में है ना, तो आपको एपी में ही सपोज करना है। और एपी में हम 3 पार्ट्स को या 3 नंबर्स को हम कैसे सपोज करते हैं, a माइनस डी, a प्लस डी। आप ऐसे भी कर सकते हो, a प्लस डी, a प्लस 2d, आप ऐसे भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि आप ऐसे सपोज नहीं कर सकते। ओके, अब यहाँ पर देखो, मैं आपको एक बात समझाती हूँ। यहाँ पर क्या बोला है आपको, अब आपको फर्स्ट सेकंड कंडीशन समझ में आ गई है कि प्रोडक्ट ऑफ 2 स्मॉलर पार्ट इज 4623, कि जो उसका प्रोडक्ट है 2 स्मॉलर पार्ट का, स्मॉलर पार्ट कौन से रहेंगे, a माइनस डी रहेगा और a रहेगा, क्योंकि प्लस वाला टर्म तो बड़ा होता है ना, तो ये बड़ा है। तो ये 2 स्मॉलर पार्ट का प्रोडक्ट जब 4623 है, तो ये तो आपको सेकंड इक्वेशन आपको इजी बन जा रही है, लेकिन आपको फर्स्ट कुछ इक्वेशन बनाना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको a भी फाइंड आउट करना है, आपको d भी फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो उसके लिए हमको 2 इक्वेशन लगेगी। अब जब आप कोई चीज को डिवाइड करते हो, कट करते हो, जैसे अगर मेरे पास ये स्केल है, मैंने इसको तोड़ दी हूँ, ठीक है, 2 जगह से तोड़ दिया है मैंने इसको 2 पार्ट में आई ब्रोक्ड अप। ओके, अब फिर मैं इसको बोलूंगी कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ द स्केल। मैंने इसको तोड़ दिया है और मैं अब आपसे पूछ रही हूँ व्हाट वाज द टोटल लेंथ ऑफ द स्केल। सो व्हाट विल यू डू, यू विल एड बोथ द स्केल। आप एक पार्ट और दूसरे पार्ट आप दोनों को क्या करोगे, जोड़ोगे, और जोड़ने के बाद आप बताओगे व्हाट इज द टोटल लेंथ। ओके, है ना। अब अगर मैं इसको 3 पार्ट में करती हूँ, तो आप क्या करोगे, आप तीनों पार्ट को जोड़ोगे और फिर आप बताओगे कि व्हाट इज द टोटल लेंथ, है ना। आप जोड़ोगे उसको। तो यहाँ पर क्या बोला है, डिवाइड 207 इन 3 पार्ट्स, मतलब टोटल जो लेंथ था वो कितना था, 207 था, 3 पार्ट्स का। 3 पार्ट्स कौन कौन से है वो, a माइनस डी, a प्लस डी। तो ये a माइनस डी, a प्लस डी, जब आप तीनों को जोड़ोगे, मतलब तीनों को आप जब ऐड करोगे, देन यू विल गेट 207। तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन जो थी, यही आपको अंडरस्टैंड करना था। सेकंड इक्वेशन बनाना सिंपल था, फर्स्ट इक्वेशन वाज क्वाइट डिफिकल्ट। ओके, तो यहाँ पर देखो, सो अकॉर्डिंग टू द कंडीशन 1 इज नॉट क्लियर टू यू, बट वी हैव टू अंडरस्टैंड। तीनों पार्ट्स को जोड़ो, a माइनस डी प्लस a प्लस डी इज इक्वल टू 207। ओके, प्लस डी माइनस डी कैंसल, a प्लस a 3a is equal to 207. a is equal to 207 upon 3. 3 6 are 18, 2 will left, 3 9 are 27. a is equal to 69. ये बहुत इंपॉर्टेंट था, जो फर्स्ट था ना इक्वेशन, उसको निकालना थोड़ा सा आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड है, चैलेंजिंग है। ओके, तीनों पार्ट्स को आपने जोड़ा है, पहले आपने सपोज किया 3 पार्ट्स कौन कौन से हैं, a माइनस डी, क्योंकि वो एपी में थे इसलिए आपको एपी की टर्म ही यूज करना है। आप, मैंने कहा ना, आप दूसरा भी यूज कर सकते हो, आप a प्लस डी, a प्लस 2d, आप इसको भी यूज कर सकते हो, आप इसको भी यूज कर सकते हो, यू विल गेट द सेम आंसर। ओके, अब देखो कंडीशन 2, व्हाट इज द कंडीशन 2, प्रोडक्ट ऑफ 2 स्मॉलर पार्ट, प्रोडक्ट मीन्स मल्टी, so product of 2 smaller parts are a minus d and a, इनका प्रोडक्ट कितना है 4623। ठीक है, पहले तो हम वैल्यू पुट अप कर देंगे a की, 69 माइनस d इंटू 69 इज इक्वल टू 4623। 69
माइनस डी इज इक्वल टू 4623 डिवाइडेड बाय 69। आप 3 से इसको कर सकते हैं। 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 4 जा 12, 3 1 जा 3। तो कितना है आपके पास? 69 माइनस डी इज इक्वल टू 1541 अपॉन 23। आप 23 का टेबल पढ़ोगे ना, आप एक तरफ बना लो 23 का टेबल, इजीली यू विल गेट 67। ओके, तो आप जब इसको कैंसिल करोगे यू विल गेट 67। So 69 minus d is equal to 67. Then minus d यहाँ आ जाएगा, ये उधर चला जाएगा। 69 minus 67 is equal to d. So d is equal to 2. आपके पास a भी आ गया, आपके पास d भी आ गया। ठीक है, ओके, हमारे पास दोनों आ गए, a भी आ गया हमारे पास, d भी आ गया, d is 2। ओके, अब हम क्या फाइंड आउट करेंगे? जो हमने 3 टर्म्स को लिया था, व्हाट वाज द 3 टर्म? a माइनस डी, a प्लस डी, a माइनस डी, a प्लस डी। सॉल्व कर लेते हैं इसको। a माइनस डी 69 माइनस 2 67, a is 69 and 69 plus 2 that is 71। तो हमारे नंबर्स क्या थे? 67, 69, 71। ओके, इजी था, बहुत डिफिकल्ट नहीं था। सबसे डिफिकल्ट चीज में जो थी, जो समझने वाली चीज थी, कि जब हम किसी चीज को जितने पार्ट में डिवाइड करते हैं, जब हम उसको ऐड करते हैं तो हमको वही नंबर सेम मिलता है। अगर मैं बोलती हूँ कि आई हैव डिवाइडेड 10 इन 3 पार्ट्स, ओके, तो उसके बहुत सारे मीनिंग निकलते हैं। अगर आप 10 को आप 3 पार्ट में कर रहे हो, 2 + 4 + 6, सॉरी 2 + 4 + 4, ठीक है, या 3 + 3 + 4, तो आप जब सबको ऐड करते हो देन यू आर गेटिंग द सेम नंबर। तो यहाँ पर कंसेप्ट वही था कि डिवाइड 207 इन 3 पार्ट्स। आप 207 को 3 पार्ट्स में डिवाइड करो, ये फर्स्ट कंडीशन थी। तो हमने 3 पार्ट्स को पहले हमने क्या किया? सपोज कर लिया। क्या सपोज किया? a माइनस डी, a प्लस डी। अब हमने 207 को ये 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है जो हमने सपोज किया है, उसी को आप ऐड कर दो, देन यू विल गेट द सेम नंबर 207 एंड दैट विल बी द इक्वेशन 1। ठीक है, ओके, कुछ कंफ्यूजन है इसके अंदर? Unmute yourself and ask me, because I think so this is quite different question from other question. Students, unmute yourself. Alisha, Alisha, ठीक है, कुछ और क्वेश्चन में इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। वी हैव ओनली 5 मिनट्स। यस, बोलो बेटा, से योर डाउट्स। Unmute yourself, बेटा। अंकिता मैम वहाँ से एक बार समझाइए ना। कौन सा समझाना है बेटा? इस साइड वाला। यही सेम क्वेश्चन? हाँ हाँ, ओके, अगेन आपको रिपीट करना है, ठीक है? 69 से, कहाँ से? 69 डी 154 जैसे आया ना वहाँ से। ओके ओके ओके, ठीक है। आपको ये समझ में आ गया इक्वेशन कैसे आई है? आपको समझ में आ गया इक्वेशन कैसे आई है?
अभी जो हमारी सेकंड इक्वेशन थी ना, वो क्या थी? प्रोडक्ट ऑफ टू स्मॉलर नंबर. प्रोडक्ट ऑफ टू स्मॉलर नंबर मीन्स a minus d into a. These are the smaller number. 4623. Okay. a का वैल्यू 69 था. Again the value of a is 69. Okay. 69 minus d, हमने इसको डिवाइड कर दिया है. तो ये मैंने आपको सिंप्लीफाई करके, हाफ सिंप्लीफाई के आपको हाफ करना है. यहाँ पर मैंने आपको 3 से करके बताया. 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 4 जा 12, 3 1 जा 3. ओके. अभी आप क्या करो ना, 23 का टेबल आप क्या करो, थोड़ा सा बनाकर आप इसको क्या करना है, आपको देखना है कि कितना आता है मेरा. या 23 6 जा 6 3 जा 18, 6 2 जा 12 एंड 1 13, 138. तो यहाँ पर हमारे पास 154 है. ठीक है. तो आप ऐसे इसको सिंप्लीफाई करके, आप जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको मिलेगा 67. ठीक है, 67 मिलेगा आपको. तो 69 माइनस डी इज इक्वल टू 67. अब माइनस डी है ना ये, आप इसको उठाकर यहाँ लेकर आओ, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड, और इसको उधर लेकर चले जाओ. तो ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, और ये माइनस आके इधर प्लस हो जाएगा, बिकॉज वी डोंट वांट नेगेटिव टर्म. 69 minus 67 is equal to D. So 69 minus 67 you will get 2. तो आपका वैल्यू मिल जाएगा 2. ठीक है. ओके. अच्छा, प्रीवियस क्वेश्चन में किसी कुछ नहीं समझा हो? प्रीवियस क्वेश्चन में बेटा से योर डाउट फास्ट. ठीक है, हम एक फास्ट कुछ चीजें ले लेते हैं. आपको जस्ट अपने आप को अनम्यूट करना है और आंसर देना है. ओके. ओके, आपको आंसर देना है. ओके. T27 मीन्स व्हाट? बोलो, सिंप्लीफाई करो. T27 फास्ट बोलना है आपको. आपको अपने आप को भी चेक करना है कि वेदर यू नो और नॉट. यस, अनम्यूट योरसेल्फ. T27 मीन्स, बोलो अलीशा, शिवम, सुनीता. बहुत सिंपल है. T27 मीन्स व्हाट? A प्लस 26D. ओके. T18 बोलो. T18 A plus 17D. No one is giving the response. आपको रिस्पॉन्स देना, देन ओनली आई विल अंडरस्टैंड वेदर यू अंडरस्टैंड और नॉट. क्योंकि आपको बार बार फॉर्मूला यूज नहीं करना है, आपको यही ट्रिक यूज करना है. फॉर एग्जाम्पल T20 है. T20 मीन्स A प्लस 19D. आपको बस एक माइनस करना है. T25 मीन्स A प्लस 24D. अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ऐसा ही है, बहुत कॉम्प्लिकेशंस है उसके अंदर. मैं थोड़ा सा उसको इलेबरेट करती हूँ, फिर आपको मैं समझा, कल हम बाकी देखेंगे. ओके. देयर आर 37 टर्म्स इन एन एपी. एक एपी में 37 टर्म्स है. द सम ऑफ द 3 टर्म प्लेस एग्जैक्टली एट द मिडल इज 225. अब यहाँ पर ये बोल रहा है कि जो मिडल टर्म है वो 225 है. देयर आर, तो मैं आपको थोड़ा सा फॉर्मूला यहाँ बताऊंगी. देयर आर 37 टर्म्स इन एन एपी. एक एपी के अंदर 37 टर्म्स है. द सम ऑफ द 3 टर्म्स placed exactly at the middle,
इज 225। मैं यही तक रुकती हूँ, उसके बाद आगे देखती हूँ, क्योंकि आपको अभी जो मैं बता रही थी ना कि आपको आता है या नहीं आता है, इसी पर समझ में आ जाएगा मुझको। There are 37 terms in an AP. The sum of the three term placed exactly at the middle. 37 term है, T1, T2, T3 से लेकर T37 तक है. Who will tell me what will be exactly at the middle? Which term? बीच में एकदम एग्जैक्ट में कौन सा टर्म रहेगा? मिडल टर्म बताओ. 1 से लेके 37 का मिडल क्या आएगा? मिडल टर्म क्या आएगा? जैसे मैं बोलूंगी 1 से लेके 10 तक का एग्जैक्टली मिडल क्या है? तो आपको निकालते आना चाहिए. मिडल टर्म का फॉर्मूला है, मिडल टर्म इज इक्वल टू n प्लस 1 अपॉन 2. व्हाट इज योर n? 37 टर्म्स आ गए, प्लस 1 अपॉन 2, 38 अपॉन 2, दैट इज 19. तो आपको जो एग्जैक्टली मिडल में रहेगा वो T19 रहेगा. और अगर मैं आपसे पूछ रही हूँ कि 1 से लेके 10 नंबर तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो someone will say 5, someone will say 6, but what will be the exactly answer? तो आपको क्या करना है? 10 plus 1 upon 2, 11 upon 2, that will be 5.5 exactly in at the middle. तो यहाँ पर एग्जैक्टली एट द मिडल क्या आएगा? फिर आपका 19 आएगा. तो आपको सॉल्व करना है. तो मिडल टर्म ऐसे सॉल्व की जाती है. उसके बाद आपसे क्या बोल रहा है कि जो एग्जैक्टली मिडल टर्म जो थे, बीच के जो 3 टर्म्स थी, उसका सम कितना है? 225 है. अब ये T19 है, इससे पहले कितना होगा? T18 होगा. इसके बाद क्या होगा? T20 होगा. क्योंकि अगर हम 3 टर्म ले रहे हैं तो एक 19 से पहले वाली लेंगे, एक 19 के बाद वाली लेंगे. यहीं पर आपकी चेकिंग होगी. T18 प्लस T19 प्लस T20 इज इक्वल टू 225. मैंने इसलिए आपको बोला कि ये आपको आना चाहिए. T18 का मतलब क्या? A प्लस 17D. 19 का मतलब क्या? A प्लस 18D. 20 का मतलब क्या? A प्लस 19D इज इक्वल टू 225. When you will have the command over it, then only you will be able to solve such type of questions. तो आप you have to work on it. आपको इसके ऊपर काम करना है कि मुझे आना चाहिए. हालांकि बहुत सिंपल चीज है, बहुत सिंपल चीज है. आपको एक तो माइनस करना है. A प्लस 18 है तो 17 करना है, 19 है तो 18 करना है, 20 है तो 19 करना है. ओके, so this question we will see tomorrow. If you have any kind of doubt, ask me fast. Because the question is lengthy, so we will take it tomorrow. मैं सिर्फ आपको ये समझा रही थी कि आपको ये आना कितना इंपॉर्टेंट है, इसको सिंप्लीफाई करना आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है. क्योंकि अभी तक हम जितने भी क्वेश्चंस देखते जा रहे हैं, इक्वेशन बनाना है, इक्वेशन को सॉल्व करना है, so that is required. Okay, so no one has a doubt in any. I am telling you this chapter is very helpful to score. आपको बहुत हेल्प दिलाने वाले स्कोर करने के लिए. तो बहुत कॉन्सेंट्रेट करना है आपको, उसका एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं करना है आपको. ओके टीचर. यस टीचर, हमें आंसर देना था बट आप हमें अनम्यूट ही नहीं कर रहे थे, तो हम आंसर कैसे दें? I told you that unmute yourself. We have given you the such authority. You can unmute yourself, beta. No teacher, I can't. We can't unmute ourselves. Okay. So then I thought you can unmute yourself. That's why I was saying to you that unmute yourself. So you understood that how to do this? Yes, teacher. Okay. Miss, आपको rest of the question समझ में आ गया? आपको ये समझ में आ गया that how to make the equations? Yes, teacher. Okay, मतलब easy लग रहा है आपको? Yes, teacher. Okay. आप कुछ क्वेश्चंस में है ऐसा कि बहुत डिफिकल्ट लगा आपको ये क्वेश्चन और आपको नहीं समझ में आया कुछ स्टेप्स? No, ma'am. Okay. Then the same question, this question we'll see tomorrow. Okay, हम देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है आपको, कैसे 3 पार्ट्स, बीच के और लास्ट के 3 पार्ट्स कैसे हम इसको सॉल्व करके इक्वेशन बनाने वाले हैं. Okay. So thank you students. So thank you ma'am. Shall I wind up?